Hello and welcome back to my show. Direct Dilse presents Bad Engineer in association with Dream Publications, Infinite Dreams, Infinite Possibilities. इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये शो इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। तो इस शो को एंड तक देखें और अगर ये किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें टू द चैनल डायरेक्ट दिल से। आइए लेट्स स्टार्ट। So, welcome to the show. So, today I would like to introduce all of you to a very dear friend of mine, Shekhar. So, I and Shekhar know each other from at least from class one onwards. So, you can't call him a chuddy buddy, but he's more or less like the chuddiest buddy I have. So, before I start the session with Shekhar, I would like my viewers to know that it's the basic idea behind this show is to share our experiences. It's not a one shoe fits all scenario. तो बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से हो सकती हैं या it might be against or opposite to what you are expecting. So please watch this video entirely, and then if you like it, then you can like, share, and comment. And even if you don't like it, do comment in the comment section below, mentioning what you didn't like. So going on to Shekhar. Shekhar, can you please introduce yourself to our viewers today? Hey guys, it's exciting to be part of this talk and hope काफी लोगों को इससे फायदा मिलेगा. अगर फायदा ना मिले, एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस से हम लोगों ने जो गलती की, you guys don't repeat it. We are small town boys who are kind of successful as of today, or we feel that we are successful. We started our journey way back in a place called Jamtara, which is kind of famous these days because of the infamous Netflix show. For schooling, हम लोग की schooling St. Joseph's Convent High School से हुई. We are like 2005 batch, right, Amit? It has been like 15 years now. 15 years. So after 10th, I went to Bokaro. I got somewhere around like 86%, which was not considered to be that great. But yeah, I was happy for the effort that I have put. So 11-12 के लिए मैं बोकारो स्टील सिटी गया था. I did my 12th from Guru Gobind Singh Public School, and I always wanted to pursue career in engineering. जब से इंजीनियरिंग के बारे में सुना था 8-9 में कि एक एग्जाम होता है IIT, which is very difficult to crack. And 10th तक सोचता था कि okay, we were kind of we are good students. तो ऐसा लगता था कि स्कूल में if you are successful, we can rule the world. तो ये सपना लेके इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. And to fulfill our dream, went to Bokaro and started our preparation. वो 10 से 11-12 का ट्रांजिशन बहुत ट्रिकी था, काफी टफ था. And what I have seen from my experience from cousins and friends around, people get lost with this transition जो 10 से 11-12 में होता है. So 10 तक ऐसा होता है, you always compete with fixed set of students जिनको आप बचपन से जानते हो. 50-100 लोगों के बीच में टॉप करना या टॉप 3 में रहना, it's not a big deal, क्योंकि सारे लोग जो होते हैं वो similar circumstances में बड़े होते हैं. Now, once you go out, you started seeing people from all over the country. You have to fight against people from all sorts of background. When I say background, कुछ लोगों के काफी अच्छे बैकग्राउंड होते हैं, उनकी स्कूलिंग आपसे अच्छी होती है, उनको आपसे अच्छा माहौल मिलता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको गाइड करने के लिए काफी लोग होते हैं. तो to tell about us, we were kind of first in our family to start with engineering. किसी को आइडिया भी नहीं था. If you think about our journey, Amit, I think 2004-5 में जामताड़ा में इंटरनेट भी नहीं था. I mean, there was just one place that we have never operated, used a computer before. तो एक दोस्त को आता था कंप्यूटर ऑपरेट करना, और उसे हम लोग हर बार ले जाते थे.
कि यार ये देखना है, ढूंढ लो. And internet speed, okay, to tell you about internet speed, to load one page it is to take 5 minutes with I don't know how many reload error. 10 से 11 12 तक का वो ट्रांजिशन ये ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 तक आप अपने स्कूल में रहते हो, टॉप करते हो, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कि यू आर द बेस्ट. लेकिन आप जैसे बाहर जाते हो द डायनामिक्स चेंजेस ड्रास्टिकली. तो मैं जब अमित, यू विल नॉट बिलीव, मैं जब बोकारो गया था आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन एवरीथिंग क्योंकि फिजिक्स वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट. मुझे लगता था ओ माई गॉड, मैं तो न्यूटन का ही नाती हूँ, ऐसा मुझे फील होता था. So I was very confident. But when I went to Bokaru, you'll not believe there were people जो 7th 8th से ही 11th 12 का preparation start कर दिए थे. Their trigonometry उन लोगों की खत्म हो चुकी थी. And just imagine the kind of pressure from that feeling of superiority. आपको ऐसा feel होता है कि you don't exist, आपको कोई existence ही नहीं है. So I was very low कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. And other tricky part was कि मैं जाके 11th 12 में coaching institutes ज्वाइन कर लिए थे which were very renowned. And it was not difficult for me to crack the exam for those coaching institutes क्योंकि 10th तक काफी study wise I was kind of good. So I joined those institute and now I was with a set of people who were I felt that they were smarter than me और उनका preparation मेरे से 2 साल पहले start हो चुका था. And it was very fast moving, the dynamics at coaching institute, they're very fast paced क्योंकि 2 साल का जो syllabus होता है उसे 1 साल में खत्म करना होता है and फिर 1 साल का preparation time रहता है. तो I was so frustrated. हर दिन मुझे याद है बोकारो से हमारा घर 4 घंटे का ट्रेन जर्नी था, तो मैं हर वीकेंड घर भाग जाता था. तो my parents never knew what I was going through. तो धीरे धीरे I screwed up initially 6 months of my 11th. It took a lot of effort to regain my confidence. So 11th ऐसा हो गया था कि I thought that I will never be able to do anything at all. तो initial 6 महीना 8 महीना जो cultural change हुआ उसको cope up करने में लग गया. After that slowly जब मेरा 11th almost screwed up हो गया था, I started gaining back my confidence and फिर से preparation start की. Since I ruined my 11th, not academically, but competitive exam point of view, say it was kind of screwed up. So I focused on my class 12 very strategically. So ये coaching वगैरह मुझे लगा कि I cannot deal with that pace. So I figured out and carved out my own strategies कि क्या करना चाहिए. The structure which will suit my way of learning the most. And guys, what you have to keep in mind is you should self-evaluate yourself. It's not necessary कि अगर कोई चीज किसी के लिए काम कर रहा है, you should just run after that. You should know your strength. किस तरीके का प्रिपरेशन तुम्हारे स्टाइल को सूट करता है, और कौन सा तरीका तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है. एंड one good thing is पहले मुझे लगता था लोग काफी स्मार्ट हैं and all. It's not true. Everyone is equally talented. It's how you pursue a problem and then how you deal with it. कुछ लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है एक दिन में रिजल्ट चाहिए, and which is not true. You have to be लगे रहना पड़ता है किसी चीज के पीछे. If you want something desperately, उसके पीछे आपको लगे रहना रहेगा. Coming back to my 12th का story. 12th का प्रिपरेशन मैंने जल्दी स्टार्ट किया क्योंकि 12th के एग्जाम्स भी थे, उस पर स्कोर करना था. तो मैं एकेडमिकली 12th का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर लिया इन 6 to 7 months. फिर मैंने 11th का जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैंने टाइम वेस्ट किया था, लॉस्ट किया था, इन नेक्स्ट 4 months आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेरी वेल. सो बाय दिसंबर और जनवरी, आई रिमेम्बर टिल फ्रॉम सितंबर टिल जैन, जब मैं 12 में था, सितंबर टिल जैन में 11th का ही पढ़ता था फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम. फिर जैन से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया 12th के लिए. तो 11th में काफी अच्छा ग्रिप आ गया था. 12th के लिए नाउ एकेडमिक के लिए मैंने 12th में काफी ध्यान दिया था, बट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था. 12th में डिसेंट स्कोर आया, फिर आईआईटी एग्जाम्स देने गए. व्हाट आई वुड से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि 12th को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली और
बिकॉज ऑफ द टाइम मैं competitively 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था. आईआईटी में डिसेंट स्कोर हुआ था बट आई डिडंट क्वालिफाई. एंड बट बाकी अपार्ट फ्रॉम आईआईटी AIEEE में उस टाइम स्टेट रैंक होता था. एंड बिहार झारखंड का तो काफी भीड़ रहता है, तो स्टेट रैंक ऑल इंडिया रैंक वाज गुड, बट ठीक है कोई कॉलेज नहीं मिला. बट अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, मैंने आईआईटी को छोड़ के मैंने जितने एग्जाम्स दिए से आई थिंक 12-14 एग्जाम दिए थे. क्वालिफाइड फॉर ऑल ऑफ देम टू माय हाउ आई चोज इंजीनियरिंग कॉलेज. It is another interesting story. Now we had no clue about okay किस कॉलेज में जाना चाहिए, कोई बताने के लिए भी नहीं था. We have no guide at all. तो me along with Amit and two of our other friends, जिसमें से एक को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता था, started looking for जिस कॉलेज में हुआ था, हम लोग जाके इंटरनेट में देखते थे कि कैसा है नहीं है. तो प्लेसमेंट में किसी ने बोला कि प्लेसमेंट देखो कैसा होता है, तो प्लेसमेंट में तो 25-30 कंपनियां लिखी रहती थी हर कंपनी सारे कॉलेजेस में. तो दिस ऑल स्टेट लेवल और रीजनल कॉलेज, टियर 2 कॉलेज बोल सकते हो. दे आर नॉट IITs और NITs. तो जो नॉर्मल प्लेसमेंट्स होते हैं TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सत्यम उस टाइम नाम चलता था, अभी तो बंद हो चुकी है. तो ऐसा था. फिर हमने देखा सैलरी, तो 25-26 हजार एवरेज सैलरी. वी वर सुपर एक्साइटेड. वाओ, जब पॉकेट मनी आया, जिनको 5 रुपए पॉकेट मनी मिलता है उनके लिए 26,000 तो सपना ही हुआ. तो वेरी एक्साइटेड. इसी स्टोरी पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि व्हेन वी वर डूइंग दीज थिंग्स, तो I generally used to tag along with you guys, क्योंकि till that time I was basically a student who was preparing for medicals. और मैं एकमात्र था जो मेडिकल में था, बाकी सब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे. और I was all alone and I used to just tag along with you guys. और while going through these, जब भी I used to see you all guys are so, मतलब प्लानिंग और रिसर्च में इतना मेहनत कर रहे हो कि ये कॉलेज का 4 साल के बाद का प्लेसमेंट क्या होगा और कैसी पढ़ाई है, ये सब. और उस वक्त मुझे ये हिट किया कि मुझे अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरा, मुझे एंट्रेंस देना है, और ये लोग मेरे से कितना आगे ऑलरेडी फोकस्ड हैं. सो यू गाइज हेल्प मी टू ब्रिंग मी बैक ऑन ट्रैक कि पहले अपने आप को एनालाइज करो. एज यू सेड कि सेल्फ एनालिसिस कितना जरूरी है. I came back on track and then I retracted कि चलो अच्छा ये सब पहले मैं कर लेता हूँ, अपने आप को सेट करता हूँ, and then I will decide कि क्या करना है. So इसीलिए I will always be glad कि शेखर has always one of those guys जो खेलने कूदने में भी उतना ही अच्छा है, पढ़ने लिखने में भी उतना ही अच्छा है, और दिमाग से भी उतना ही अच्छा है. So thanks Amit. I mean what I self analysis is very important. If you already have someone to guide you, it's good. But हम लोगों ने धक्का खा के सीखा है. I would consider ourselves as street smart. Yeah. Luckily, our parents are very supportive on whatever decision we took. They never say कि ठीक है तुम अपने career का decision ले रहे हो, you have thought through it. So I always had that mindset कि my parents are trusting me on the decision that I am taking. So I would have to stand for my decision और जो भी मैं steps ले रहा हूँ. So I was very cautious about each of my every move. तो yeah, coming back to college का search करना. तो हमने प्लेसमेंट देखा, तो प्लेसमेंट तो यार सबके अच्छे दिख रहे हैं. अब ब्रांच क्या लेना है? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स. कंप्यूटर तो ऑपरेट करना भी नहीं आता था, तो किसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इसका जमाना है नेक्स्ट. तो बोले ठीक है चलो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं. तो अब सारे कॉलेज के काउंसलिंग होते हैं, उसमें जाने लगा. तो जितने एग्जाम्स हुए थे, जैसे मैं वेस्ट बंगाल जॉइंट में डिसेंट सा रैंक था, तो मेरे रैंक पे बेसिस पे मैंने 4-5 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए थे कि ये कॉलेज मिल सकता है, एंड उस कॉलेज के प्लेसमेंट्स वगैरह देख के रखे थे. तो जब गया, मैं बोला ठीक है. तो मैंने हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चूज किया था. रीजन क्यों चूज किया था कि आई वांटेड टू बी इन अ सिटी विच डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. जैसे कोलकाता में छोटे शहर के बच्चे बड़े शहर में जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं. आई हैड दैट नोशन कि मैं बिगड़ ना जाऊं. तो आई चूज अ कॉलेज विच इज ऑन द सबर्ब्स, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हो,
which have a decent, good campus life, placement अच्छा है, faculty अच्छा है, तो based on that I chose हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब उसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने का मूड था, क्योंकि किसी ने कहा कि ये अभी ब्रांच चल रहा है, आई हैड नो क्लियर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं मिला, बट बोला ठीक है, नेक्स्ट सबसे अच्छा ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस रख लो। तो कंप्यूटर साइंस आई वाज बट रिलक्टेंट। लोग बोलते थे अरे कुछ काम नहीं रहता है, चेयर में बैठे रहना होगा, कमर दर्द हो जाता होगा, बैक पेन हो जाता है। तो मैं बोला यार कुछ तो मिल नहीं रहा है, चलो यही ले लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद कंप्यूटर साइंस। एंड जस्ट FYI कि कंप्यूटर साइंस लेने से पहले मैंने कभी कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं किया था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था इसी क्या बात पे होता है। मैं बोलना चाहूंगा कि इफ यू रिमेम्बर कि हमारे क्लास 9th में ऑप्शन था कि हमें इकोनॉमिक्स चूज करना है या कंप्यूटर चूज करना है, and you were राइट। in two minds then because you had already started economics या कंप्यूटर, दोनों में से कोई एक कंप्यूटर आई हैव स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड कंप्यूटर साइंस, बट मेरी इकोनॉमिक्स के टीचर मुझे इतनी पसंद करती थी, उन्होंने मुझे बोला शेखर तुमने कंप्यूटर साइंस रख लिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन इकोनॉमिक्स। तो मैं 3 हफ्ते कंप्यूटर साइंस क्लास करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में मूव कर दिया, एंड सरप्राइजिंगली बोर्ड में आई स्कोर्ड 97 इन इकोनॉमिक्स। 10 तक I don't regret whatever I if I have to look back, I don't regret any of those decisions. Now Haldia Institute of Technology Computer Science college starts हुआ, I was excited, a bit unhappy. हाँ ना, coming back, ये important point, ये जब college choose कर रहा था तो ये IIT का भूत मेरे दिमाग से नहीं उतरा था। तो मुझे याद है अमित रांची गया था प्रिपरेशन करने, एंड आई वेंट टू रांची, आई स्टेड एट अमित्स प्लेस, एंड 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके बात की कि 1 साल तैयारी करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो किसी ने मुझे बोला था कि अगर छोटे कॉलेज से बीटेक करोगे तो तुम्हें एमटेक भी करना होगा, क्योंकि रीजनल कॉलेज का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है। तो एक एमटेक का बीज उसने किसी मेरे दिमाग में डाल दिया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि 1 साल ड्रॉप करके IIT का तैयारी किया जाए, या 4 साल बाद फिर से एमटेक करके कुछ अच्छे कॉलेज देखेंगे। बट फिर फॉर सम रीजन आई ड्रॉप द प्लान टू। अब क्योंकि IIT छोड़ के मेरे इतने सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स क्लियर हुए थे, आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड कि इतने सारे सब कुछ छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। सरप्राइजिंगली BHU में मेरा हुआ था फॉर सम कोर्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल साइंस, एंड आई रिमेम्बर ऑल फैमिली फ्रेंड्स वर लाइक तुम BHU छोड़ रहे हो? तो मैं उनको बोला था यार खेती करना है क्या? Somehow for some reason I dropped the idea to go for preparation, but continue with the course. तो फिर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। So retroactively अगर अभी तुम retrospect करो and then you वो 1 year जो decision तुमने लिया कि whether you should drop or not, so if you are currently standing in today's position and looking back, how important would you say that decision was? क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग के लाइफ में अगर आप मेडिसिन प्रेफर करते हो, दैट्स अ टोटल डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वहाँ 2-3 साल लोग प्रिपेयर करते हैं, बट इंजीनियरिंग में ये 1 साल ड्रॉप करना ना करना कितना इम्पोर्टेंट है? What I believe, if I have to look back, I don't regret that decision. Considering हम लोगों को जितना आइडिया था और जितना गाइडेंस मिला था। Now fast forward today, people from my college are doing equally good as I am doing. I am so, just for everyone, I did masters from IIIT Bangalore, which is one of the premium college in India. काफी अच्छा reputation है. If I have to look back with my friends from Haldia, many of them, or few of them at least, are doing pretty good. The reason being they were very laborious. Guys, one thing, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, you get the opportunity easily. Just keep in mind, it's just the opportunity. You don't get success, you get the opportunity. आपको थोड़ा easily मिल जाता है. अगर आप Tier 2 कॉलेज से है तो opportunity मिलने में आपको थोड़ा fight करना पड़ता है, but you will get it. It's not a closed door. थोड़ा ढूंढना पड़ता है. You have to do your due diligence to get that opportunity. कुछ लोगों को easily मिल जाता है. As of today, I work with people from MIT, Stanford. I don't see myself less. I'm not अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ. We are software developers. We are not researchers. अगर researchers होता तो story might have been different. We write code, which is a skill set to acquire.
and I feel that I have acquired it with time, and I don't see myself any less than people who have degrees from the best colleges in the world, because they are doing the same work as I am doing, and at times I do better than them. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे मैं अच्छा हूँ, but you know, I don't undervalue myself. तो या कमिंग टू ये जो कॉलेज और स्ट्रीम का जो मतलब कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक अच्छा कॉलेज उन्हें मिल रहा है लेकिन उसमें अच्छा स्ट्रीम नहीं मिलता है, उनके हिसाब से नहीं मिलता है, तो वो उसे छोड़ देते हैं. या बहुत सारे मतलब टायर 2 कॉलेज में उनके हिसाब का स्ट्रीम मिल रहा है लेकिन कॉलेज उतना रेप्यूटेड नहीं है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या चूज करना चाहिए? कॉलेज देख के कोई भी स्ट्रीम ले लो, या पहले अगर आपको इंटरेस्ट है स्ट्रीम में, स्ट्रीम के हिसाब से कॉलेज लो? सो या तो दोनों इम्पोर्टेंट है या दोनों में से एक इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि स्ट्रीम इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीम काफी इम्पोर्टेंट है. जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे कोई बोलता है कि तुम जाके MBBS कर लो, just for an example, might be relevant. Let me not take that MBBS का example. Let me take some mechanical versus computer science example. So इतना तो है ना, ब्रांच का नाम सुन के पता चल जाता है कि सिविल वाले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले लैपटॉप लेके बैठते हैं. The story might be different, but on a very, but 100 feet view अगर देखो तो मुझे पता था मुझे वो फील्ड वर्क नहीं करना है, मुझे जाके कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, मुझे जाके वेल्डिंग नहीं करना है. आई न्यू जो नहीं करना है मुझे पता था, क्या करना है ये नहीं पता था, बट क्या नहीं करना है ये पता था मुझे. तो ठीक है, जो क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है आई डिडंट नो कि क्या करना है, बट ये नहीं करना है ये तो डेफिनेटली पता है. तो आई स्टार्टेड कटिंग डाउन ब्रांचेस कि क्या नहीं करना है. And then, the options will electronics and communication and computer science and IT, the options that I was left with. Now, your question was how important is choosing the branch. Choosing the branch is extremely important, क्योंकि आगे जाके, अगर आप for example एक tier 2 college से पढ़ते हो, आगे जाके आपको opportunities मिलते हैं. See, at the end of the day, एक अगर आप normal college में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा guidance ना मिले, आपको बहुत अच्छा exposure ना मिले. But if you are very passionate about what you want to do in future, you can cover up those gaps. मतलब I will quote the same example again. अगर आप tier 2 कॉलेज से हो तो आपको opportunities मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, आपको खुद से मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा. versus अगर आप tier 1 कॉलेज से हो तो आपको guidance अच्छा मिलेगा. तो that's the mindset. But branch is extremely important, that I would say. If you ask me branch versus college, so I would go with branch and stream. The Institute of Technology, we're very excited. College was good. मेरे दोस्त भी join किए थे, मेरे school friend अर्नब. We did all the research work together कि किस college में जाना है. So दोस्त थे, नई जगह थी. We were excited. कॉलेज का फी काफी कम था. That was one of the reason to choose the college, by the way. Apart from when I was shortlisting from other colleges, placement काफी अच्छा था कॉलेज का. तो हल्दिया में our journey started. We were happy. What I realized eventually is मतलब honestly speaking, कॉलेज में we were not very serious. ऐसा था ना कि 12th तक कि एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ फिर तो सब कुछ सेट हो जाएगा. We were in that mindset. And Haldia mein, within 6 months, I realized that, okay, I am in the top 10% of our batch. तो अब कॉलेज का प्लेसमेंट, अपने ब्रांच का प्लेसमेंट जहाँ 80% है, वहाँ तो अगर मैं टॉप 10 में आता तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा. ऐसा था माइंडसेट. तो आई स्टार्टेड टेकिंग माय स्टडीज वेरी लाइटली. नॉर्मल जितना सर्वाइव करने के लिए पढ़ना रहता था पढ़ता था. आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट आवर कोर्सेज. Now I remember attending some college fest in our no sorry not college fest, I think third year summers. मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, नेटटेक नाम था. तो उसका हाँ कोर्स वो सिक्किम मणिपाल में हो रहा था. तो हम सिक्किम मणिपाल जाके 1 महीने रहे थे. It was on our expenses, but उस कोर्स में बाकी कॉलेजेस के लोग भी आए थे. People from good NIT, good IIT. So that was my first interaction
with such people. इससे पहले मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि ओके ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, नहीं होते हैं. So in that course, I performed miserably. And whenever I feel miserable, I start reevaluating myself कि मैं क्या कर रहा हूँ. I feel that's kind of my strongest strength. ये मैं self evaluation बहुत ज़्यादा करता हूँ. At time it becomes stressful, but it have helped me always. So when I performed miserably, I started looking back why I did miserably and what they are doing differently. What I realized being in computer science, they take all the computer science core subjects, data structure, algorithms, coding very seriously, and they are very religious about writing code, practicing, going on coding competition and stuffs like that. और मेरा माइंडसेट कुछ आइडिया ही नहीं था. काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे चलता था. तो आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ कैन आई फिक्स दिस. तो फिर मेरे दिमाग में एमटेक का कीड़ा जागा कि मुझे एक बार एक टियर 1 कॉलेज में जाके पढ़ना है. एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. within 6 to 8 months I prepared very decently. कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था. आई रिमेम्बर आई टुक ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम गेट फोरम व्हिच वाज हेल्पफुल. द रीजन आई हैव टू गो फॉर एडिशनल कोचिंग वाज क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कभी पढ़ाई नहीं की थी सीरियसली. तो वो जो कोर्स सब्जेक्ट्स थे वो थोड़ा मिसिंग सा था. तो वो गैप फिल करने के लिए मुझे एडिशनल कोचिंग लेना पड़ा था एंड इट वाज हेल्पफुल. आई वुड सो एनीवन जो लोग एमटेक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड देम टू join any coaching institute, not physically but virtually, either video classes अगर ले लो. तो ऐसा उस वक्त when you were thinking about MTech का कीड़ा तो चलो जाग गया था, but even did you even thought about कि MBA भी किया जा सकता है? जैसे most of the हमारे engineering background से जो भी आते हैं CAT ZAT दे के IIM से अपना MBA कर लेते हैं, लेकिन why did you choose MTech over MBA या MBA कभी ख्याल में था भी नहीं? You were mostly inclined toward the tech. Right. So I was always inclined towards tech. मैंने काफी लोगों का देखा है कि वो लोग बीटेक करते हैं बट उनका फर्स्ट ईयर से ही माइंडसेट रहता है कि मुझे MBA करना है, और लोग फर्स्ट ईयर से MBA का प्रिपरेशन करते हैं. I don't see a point in that. आप 4 साल का बीटेक करते हो, फिर आप MBA के लिए एग्जाम देते हो. A better option अगर आपको इतना क्लैरिटी है कि आपको MBA ही करना है, तो why even to come to a technical line which is altogether different. And trust me guys, you don't get any added advantage if you are from an engineering background. There are certain roles जिसके लिए might भी help मिल जाए, but 95% of the cases में ज़्यादा benefit नहीं मिलता है. You are treated equally as others. और better option कि आप लेकिन शायद आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैट क्लियर करने में मदद कर दे, मतलब कंपैरेटिवली. मतलब लोगों का माइंड नहीं लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि मदद कर दे. क्यों मदद कर दे? क्योंकि मैथ्स रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, बट वो मैथ्स वो एप्टीट्यूड हम लोग इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ते हैं. वो जो मैथ का सिलेबस अगर देखोगे आप तो क्लास 12 तक का रहता है, नॉट इवन 12, माइट बी 10 तक का रहता है. कैलकुलस, हाई लेवल अलजेब्रा, ये सब तो नहीं रहता है. इट्स बेसिक मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. यू डोंट हैव टू बी, आपको अगर 12th में मैथ्स ना भी रहे तो इट्स गुड इनफ. तो बेटर ऑप्शन जिनको इतना क्लैरिटी है, बिकॉज आई रिमेम्बर माय रूममेट, वो फ्रॉम द फर्स्ट वीक इटसेल्फ उसने वो तो एक कुछ अग्रवाल का कुछ तो किताब आता है कैट के लिए, आई फॉरगॉट द नेम. तो वो लेके आके वो पढ़ता था. मैं बोला अरे यार ये क्या कर रहा है, कितना अच्छा है ये, कितना पता है इनको. फिर आई रियलाइज कि अगर आपको इतना क्लैरिटी है कि आपको MBA करना है तो आप इंजीनियरिंग के लिए आइए क्यों. नाउ गाइस इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है, उससे अच्छा 12th के बाद ग्रेजुएट हो जाओ, मैथ्स में ग्रेजुएशन कर लो. बेटर ऑप्शन. आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा हो जाएगा, आपका मैथ्स का प्रिपरेशन मुफ्त में हो जाएगा, प्लस वो 3 साल में खत्म हो जाएगा कोर्स. जहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे 4 साल में कैट के लिए अपियर होंगे, आप 3 साल में रेडी एलिजिबल रहोगे. वो ज्यादा अच्छा होगा. प्लस ग्रेजुएशन इज नॉट वेरी इंटेंस, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, वर्सेस इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं. तो आई वुड से गाइस हैव अ वेरी good clarity on what you want to do.
जस्ट इंजीनियरिंग में घुस के अगर आप सोचते हो कि आपको एमबीए करना है तो दैट्स नॉट एन आइडियल ऑप्शन। हाँ, एमबीए करना कहाँ बेनिफिट हो जाता है, आप इंजीनियरिंग किए, यू वेंट टू एन इंजीनियरिंग जॉब, कुछ टाइम स्पेंड किए, एंड देन यू नीड टू बिल्ड दैट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। अगर आपको दिखता है कि आपके स्किल सेट में वो गैप है विच अ कोर्स कैन फिल, तो आप जाते हो। या तो काफी लोग क्या होता है इंजीनियरिंग के बाद वो लोग करियर स्टार्ट करते हैं, दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर, तो दे वांट टू चेंज देयर करियर, देयर स्ट्रीम ऑल टुगेदर, तो वो लोग एमबीए करने जाते हैं। तो उनके लिए अच्छा रहता है। बट अगर आप इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो फॉलो इट रिलीजियसली, मेक इट योर करियर एंड देन सी इफ इट डोंट वर्क आउट, फिर आप एमबीए करने जाओ या कुछ और करने जाओ। लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे हो ये सोच के कि मुझे एमबीए करना है या मुझे यूपीएससी निकालना है, आई डोंट सी अ पॉइंट, आई डोंट सी अ पॉइंट एट ऑल। काफी लोगों का माइंडसेट रहता है चलो 12th के बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इंजीनियरिंग करना वो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे क्या करना है। दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन आपको अगर क्लैरिटी है आपको यही करना है तो मतलब व्हाई इंजीनियरिंग, देयर आर टन्स ऑफ अदर कोर्सेज, लीव योर सीट फॉर समवन हु इज डेस्परेट अबाउट इट। तो आई हैव दैट क्लैरिटी कि मुझे अपना करियर इंजीनियरिंग में ही बिल्ड करना है। एंड सो जब एमटेक का कीड़ा काटा तो एमबीए का आई टोल्ड यू कि एमबीए मेरे दिमाग में था नहीं कभी। तो फिर अब वहाँ वो समर ट्रेनिंग के वापस जाने के बाद आई वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, ये सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ऑल, आई चॉक्ड आउट माय नेक्स्ट 1.5 years प्लान कि क्या करना है मुझे। एंड तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, आइदर फिर इन लोगों से, या कमिंग बैक टू माय एक्सपीरियंस इन दिस समर कैंप, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट कंपनीज लाइक Amazon, Google। तो उन्होंने आई ओवरहर्ड अ स्टोरी अबाउट अ गाय, ये किसी आईआईटी के बच्चे लोग डिस्कस कर रहे थे और एनआईटी, आई डोंट रिमेम्बर, बट दे आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, कि यार ये सीनियर का हो गया, बहुत फोर्थ था वो, ही वाज एक्सट्रीमली गुड, ये अमेजन में हो गया, फिर एक का वेट लिस्ट में आ गया है। आई थॉट ओके ये अमेजन क्या है, तो फिर जाके थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि अमेजन ये कंपनी है जो बहुत ही टैलेंटेड लोगों को लेती है। तो दैट वाज द डे, अमेजन इट इज, अमेजन जाना है मुझे। ठीक है, डिसाइडेड, कैसे जाना है नहीं पता, बट अमेजन जाना है। तो वापस जाके सर्च किया अमेजन इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आए, ये अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहे थे मुझे। मैं बोला यार ये लोग तो कंप्यूटर साइंस वाली है, बट ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं। तो I realized the gap, the knowledge gap that existed. And I don't say I was in a tier 2 college जिसके लिए gap था, it was because of my seriousness, वो gap आया था। I wanted to rectify that gap. And second चीज था, 12 में था, सपना था आईआईटी करना है, नहीं कर पाया, तो एक अच्छे कॉलेज से मैं सोचा चलो एमटेक कर लेते हैं। तो I started looking for colleges. I shortlisted. I knew IIT. NIT सोचा था नहीं जाऊंगा, IIT and triple IT ही जाना था। The reason being, based after discussing with these people, उन्होंने बोला कि इन कॉलेजेस के लोग काफी अच्छे होते हैं। तो मैं बोला ठीक है, इनके अच्छे होते हैं तो मैं यहीं पे जाके करूंगा, बीटेक नहीं तो एमटेक ही सही। तो started my preparation, काफी decent preparation हो गया था, गेट में अच्छा स्कोर आ गया। Now, when I have to choose the college, so I went to Triple IT Bangalore. Why? So I remember Triple IT Allahabad में हुआ था, Bangalore में हुआ था, and एक किसी IIT में हुआ था, I don't remember exactly. तो why Triple IT Bangalore? तो फिर again, guys, I mean, you might think that मैं ये लड़का बहुत ज़्यादा strategically काम करता है। तो मैं देखा Triple IT Bangalore में बीटेक नहीं थे, it was all masters. ना जब अगर जिस कॉलेज में सिर्फ मास्टर्स लोग हैं तो प्लेसमेंट के टाइम में आई विल बी कंपीटिंग जस्ट विद मास्टर्स पीपल, नॉट द बीटेक पीपल। तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम होगा। एंड बैच स्ट्रेंथ वाज वेरी लो, 150 120 बैच स्ट्रेंथ था। तो मैं बोला हाँ ठीक है, 100 लोगों के साथ compete करने में क्या ही है। तो so and apart from that, Triple IT Bangalore के faculties, they were like world class. I got carried away, people holding degrees from Harvard, MIT,
So that was very attractive for me. So I started with IIIT Bangalore. I was very nervous when I started again. Oh yeah, coming back before my MTech placements. So BTech में Basement, हाँ. placements. So placement season आया. TCS got the first slot. TCS was kind of dream for everyone. So TCS, Wipro, and Cognizant were fighting for 0-day slot in our company. So अब जब इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है मैं तो 10% टॉप 10 में हूँ यहाँ तो मैं कुछ कर ही लूँगा तो सो अब ना ये 0-day स्लॉट का कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि कोई भी कंपनी अपना रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करेगा तो मैंने तीनों कंपनीज के रिटर्न क्लियर किए इंटरव्यूज हुए काफ़ी अच्छे हुए and I cleared all 3 of them. Now 26,000, 30,000. Oh my God, we were in dream. Again, those जिनका 10 रुपये पॉकेट मनी रहता है उनके लिए 30,000 is a big deal. तो I was in a dilemma कि क्या करना चाहिए. But घर में घर वाले, family, friend and all. TCS Tata was a big name. Is a big name. अंदर जाके क्या होता है nobody knows, but बाहर से Tata is a big name. तो सब बोले अच्छा तो दे रहा है चले जाओ. So honestly, no one backed up my decision to go for masters. My father told, okay ठीक है मैं तुम्हें और 2 साल का कॉलेज का फी I will manage. ठीक है. After that you have to figure out on your own. तो जॉब छोड़ के एमटेक के लिए चूज करना इट वाज अ हार्ड डिसीजन बट आई वाज वेरी क्लियर आई हैड क्लैरिटी एटलीस्ट कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में तो IIIT गया पीपल who I mean the kind of people my peers in IIIT they were so good academically everyone तो वो लोग अपने कॉलेज कन्वोकेशंस के फोटो डालते थे किसी कॉलेज में प्रेसिडेंट आया किसी कॉलेज में चीफ मिनिस्टर आया मैं बोला अरे ये लोग तो बहुत ही शानदार लोग हैं वर्सेस मेरे कॉलेज में तो कन्वोकेशन ही नहीं होता है अब मेरा क्या होगा आई वाज अगेन स्केयर्ड ये जो मैं 12th के टाइम 11th में बताया था ना बोकारो जाके जैसे मेरा हाल हुआ था आई वाज गोइंग इन दैट सिचुएशन अगेन तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट होता जा रहा था तो इंटरेस्टिंगली फिर yeah so that's how IIIT started not on a great note but I discovered ki coding was my strength writing code was my strength anything around code was my strength and that was something that used to excite me a lot तो मैंने अपने स्ट्रेंथ पे काम करने लगा एंड मैंने अपने स्ट्रेंथ को इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आई वाज बेटर देन एनी ऑफ माय पीयर्स एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट तो IIIT में academically I didn't do very well but to be successful as a computer science engineer which is coding क्योंकि मैंने वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मतलब हाउ टू पुट इट academically I was weak but I was confident कि I will be successful as an engineer तो IIIT में जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ तो Cisco was our day one company तो नहीं तो oh sorry to tell about my IIIT का story my grades were kind of low तो first week company के list आए Google so for some reason Amazon didn't come to campus that year Google Yahoo NetApp जितने बड़े companies हैं Cisco I was not eligible for most of the companies I was a bit disheartened so जब placement start हुआ तो Cisco आई थी campus में तो just on the last day just before the उनका discussion start होता they just lowered down the CGPA minimum requirement and मुझे 1 घंटा पहले पता चला कि okay I'm eligible for Cisco now so when you see about the grades were not that good
हमेशा ये देखते हैं कि मोस्टली व्हेन जब स्टूडेंट 12th से या बीटेक करने, इनिशियली जब बीटेक करने जाते हैं, सो क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कैरिड अवे, और हम्म जो स्ट्रीम को लेके या सब्जेक्ट्स को लेके उतना ज्यादा मतलब फोकस नहीं रहते हैं कि अब तो ठीक है इंजीनियरिंग पार हो जाएगा. सो हम्म हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक grades are when you are doing your BTech or MTech? क्योंकि although हम बोलते हैं कि चलो grades बाद में कोई नहीं पूछता, but हम्म with related regarding the placements, those are the most important criteria जो कम से कम gives you a window कि आप window of opportunity कि आप बैठ के उन companies में apply कर हम्म सको. तो how do you think how important the grades are when you're studying in college? uh, I mean, okay, grades are grades are both important and not so important. इसके दोनों aspects हैं. Now, uh, मतलब what do grade reflects, by the way? What do you think, Amit? Grades क्या बताता है about a student? उस सब्जेक्ट में उसका नॉलेज या ओवरऑल एकेडमिकली वो क्या है, मतलब फोकस्ड है नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दे रहा है नहीं Exactly, दे रहा. exactly. That's the point. How sincere you are on what you have in your hand. Being a student, आपके हाथ में है कि मुझे पढ़ना है. Now, are you doing that properly? अगर आप वो properly नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वो properly नहीं करके क्या आप मूवी देख रहे हो, आप घूम फिर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए आपका ग्रेड्स कम हुआ, एक्सेप्टेबल. आप अगर सिर्फ घूम फिर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ, यू आर जस्ट पासिंग टाइम, that's where grade shows how serious you are at that point of time. And serious about what? तो grades उस point में important नहीं होता है when you know कि where you are wasting that time. Grades important तब हो जाता है कि आपके पास जो है, अगर आप for example being student, आपका काम है पढ़ना, if you're not able to do that properly, how will you do anything else? तो जैसे तुम्हारा सपना था मूवी बनाना, ठीक है, चलो तुम पढ़ाई नहीं करके अगर उस ड्यूरेशन में मूवी डायरेक्ट करते, शूटिंग करते, एक्सेप्टेबल. यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन समथिंग विच यू वांट टू परस्यू इन लॉन्ग टर्म. बट अगर आप उस टाइम पे बोलोगे मैं सिर्फ मूवी देखूंगा, मैं काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा, बट यार ठीक है, तुम काउंटर स्ट्राइक खेल के कैन यू बी अ प्रोफेशनल? Is it something which can, you can make this as a career, as a professional counter strike player? तो ठीक है, acceptable. अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो तो नॉट एक्सेप्टेबल. आई एम नॉट टेलिंग कि आप फुल टाइम पढ़ो, बट एटलीस्ट जो बेसिक चाहिए रहता है. तो आई वुड नॉट डिनाई कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंड एज टोल्ड यू शुड नो वेयर यू आर पुटिंग योर टाइम. और so triple IT में my grades were low, and the reason being I was very serious about जो projects करना रहता है and improving my coding skills. So I don't repent कि book पढ़ना थोड़ा वो मेरा थोड़ा weak point था. That never excites me much. तो मैं projects करना, तो I used to take response. 5 लोगों के projects मैं अकेले करता था. वो लोग अपना, हाँ, सो दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मैं प्रोजेक्ट करता था पूरा. टीम में अगर 6 लोग होते थे तो मैं अकेले ही करता था. मैं बहुत ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करता था. तो आई न्यू वेयर आई एम पुटिंग ऑन माय टाइम, सो आई डोंट रिग्रेट कि मेरा ट्रिपल आईटी में आई वाज एकेडमिकली वीक और मेरे मार्क्स कम थे. आई न्यू कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ. एंड आई से इन्वेस्ट क्योंकि मुझे पता था दिस इज इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन लॉन्ग टर्म इट विल पे ऑफ. So yeah, now coming back to placement season again. तो प्लेसमेंट फिर से स्टार्ट हुआ एंड 1 घंटा पहले मुझे पता चला मैं सिस्को के लिए एलिजिबल हूँ. गया एंड जहाँ लोग प्रिपरेशन कर रहे थे सिस्को के लिए महीनों से, एंड मुझे पता था मैं सिस्को के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा बिकॉज ऑफ माय सीजीपीए. मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, बट क्योंकि मैं अपनी कुछ कोर चीजों में इतना ज्यादा फोकस्ड था, I did so good on them that it shadowed all others, जहाँ gaps थे. तो सिस्को में हो गया, people were like, अरे इसका कैसे हो गया? I told इसका कैसे हो गया इसको पता है, no one else knows because so where people were raising questions कि इसका might be ये luck के लिए हो गया, but I knew, I don't believe in luck, by the way.
I totally believe in hard work and how you strategically plan your things. तो सिस्को में हो गया, एंड देन देयर वाज अनदर गुड कंपनी कॉल्ड फायर वेल्डिंग, स्टार्टअप था, उसमें मेरा इंटर्नशिप हो गया, सिस्को में फुल टाइम हो गया. ये डे 1 की बात है. आई एम डन ऑन डे 1. तो नाउ Amazon मुझे पता चला कॉलेज में नहीं आ रही है, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर Amazon एक्सटर्नली. तो अब Amazon वाले बोले टिल यू ग्रेजुएट, टिल यू हैव योर डिग्री, वी विल नॉट इंटरव्यू यू एज एन एक्सटर्नल कैंडिडेट. तो I have to wait जब तक मैं ग्रेजुएट ना हो गया. एंड देन यू नो कॉलेज से निकल के आई जॉइंड सिस्को. So once I joined Cisco में 2 महीने हुए थे, and I applied for Amazon. Triple IT is kind of reputed. तो Amazon वाले ने तुरंत बुला लिया इंटरव्यू के लिए. And you know that's what I was planning since 3rd year. And I got that opportunity, and by God's grace and my preparation, Amazon हो गया. I was super excited. So I resigned from Cisco just after 3 months and joined Amazon. It was kind of dream come true. And then my batchmate started realizing, okay, इसका luck से नहीं होता है, and you know there is something this guy does. So now yeah, Amazon अब now you know जब मैं बोला ये tier 1 tier 2 कॉलेज का डिफरेंस, now ये ट्रिपल आईटी देख के मेरा Amazon से कॉल आ गया. तो मेरे जो हल्दिया के दोस्त थे, they started applying. उनका कॉल नहीं आता था. They were kind of upset, you know. So मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैं उनको कोच करने लगा कि कैसे तैयारी करना चाहिए Amazon, how is it to interview for Amazon. तो मैं उनको काफी हेल्प किया प्रिपरेशन के लिए. They prepared for 1 year and they keep on applying. After a year, couple of them got call. One got through Amazon. And guys, the point to note here is he was from Haldia only. ये tier 1 कॉलेज से नहीं था वो. What paid it off is his hard work, his sincereness. So वो मैं initially एक point बनाया था कि अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से हो तो आपको opportunity अच्छे easily मिल जाता है. आप एक tier 2 कॉलेज से हो तो might be थोड़ा time लेके मिले, but you know if you are devoted to it, you will get it. So as I would also like to point this out to my viewers कि you in our हमारे सर्कल में you are mostly considered as interview cracker, और जिसको पता है कि ड्रीम कंपनी में अगर चूज करना है, like you have so many most of the times motivated me as well to look for a better company या go towards your dream company, उसके लिए prepare करो. So what would you suggest our कोई भी अपना अगर मास्टर्स कर रहा हो, बैचलर्स कर रहा हो, so how do they prepare for the interviews for their dream company? Now since I'm from you know computer science background, so I'll share my experience around that. So guys, focus on your fundamentals and what is required to get the job done. तो अगर आप Amazon, Microsoft जैसे कंपनियों में देखो तो they focus totally on your coding skills and data structure, algorithms, इन पे आप कैसे काम करते हो, क्योंकि इनका day in and day out वही रहता है. तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी कंपनी चूज करते हो, जस्ट सी यू नो ये कंपनी क्या प्रॉब्लम्स पे सॉल्व कर रही है, एंड देन सी कि वो लोग जिस प्रॉब्लम स्पेस में हैं, डज दैट प्रॉब्लम स्पेस एक्साइट्स यू. And if something excites you, you will put effort, you know, that will motivation comes with excitement. They are kind of interlinked. If you are excited, you will be motivated. If you are motivated, you will put in effort. So you know, तो what मैंने अपने दोस्तों से बात करके what I realized, जो लोग हल्दिया से थे, although they were better than me at हल्दिया, वो लोग काफी reluctant थे कि अरे Amazon तो हो ही नहीं सकता, अरे Microsoft तो हो ही नहीं सकता है. So you know, I gave them a push कि नहीं ऐसा नहीं है. This is what you should do. This is the gap that we as a tier 2 college students have, and this is something that you can fill in you know 3 to 4 months of sincere effort. This is not something unachievable. मैं इनको बोला Amazon में मैं एक IIT के साथ काम करता था. They are very normal, you know. उन्होंने मेहनत की ज़्यादा 11-12 में, they got through it. Obviously
10% of the people might be genius, उनका IQ level काफी high होता है, but मैं अगर average की बात करूँ they are all the same. तो मेरे friends को मैं guide करने लगा. मैं 6 लोगों के साथ रहता था बैंगलोर में. I shared the house with 6 other people or 5 other people. 2 of them are in Amazon, one is in Microsoft, one is in Oracle. And yeah, they are very well settled. इनका अगर मैं अपने बाकी बैचेस के साथ बात करूं, people are not that successful. Why they are not that successful? Because they didn't have someone like me to motivate them, to show them, that this can happen. So, matlab just to, I mean, how important is getting started. So for example, my wife, even she was from a tier 2 college and she was working for a service based company. Even I pushed her ki you can do it. She was very reluctant, very scared ki nahi ho paega. She moved from TCS to Cisco, in a matter of 6 months, which many of my ex Haldia friend don't even think of. They think that ye possible hi nahi hai. It's not about ye possible nahi hai, because you are hesitant to start. You are afraid of putting in effort. You are just running away from it. महीने की salary आ रही है, they are happy with it. They don't have motivation in life. मेरा motivation था कि मुझे सबसे अच्छा करना है. It was not money. Money comes eventually, but मुझे बाकी लोगों से अच्छा करना है. I had that, and that used to push me. So yeah, after Amazon, I never looked back. I worked with almost all tier 1 companies, Amazon, Flipkart, Ola Cabs, and then I joined back Amazon again. And right now I'm in Seattle. Yeah. So coming to Seattle, ये कैसे हुआ? What visa processing went into this, or how one should approach? क्योंकि basically जब भी कोई एक multinational company में फर्स्ट और फॉरमोस्ट दिमाग में यही रहता है कि ऑन साइट का क्या होगा, ऑन साइट कैसे होगा. सो हाउ शुड वन अप्रोच दैट? वन थिंग व्हाट आई हैव नोटिस, लोगों का सपना रहता है यूएस जाना है, टीसीएस ज्वाइन किया, इन्फोसिस ज्वाइन किया, ऑन साइट लगेगा. एंड कैसे लगेगा? ठीक है, मैनेजर अगर बोलता है, मैनेजर अप्रूव करता है, आप अपने करियर का कमांड किसी और को दे रहे हो. And that's not how it should be. अगर यूएस जाना है तो फिगर आउट कि ठीक है कैसे जाना है. इज इट बाय हार्ड वर्क, इज इट बाय चेंजिंग कंपनी? तो अमेज़न से यूएस जाना इज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी. अगर आप टू टॉक अबाउट माय यूएस जर्नी, अमेज़न इंडिया से यूएस लोगों को L1 वीजा पे भेजती है. L1 blanket. So there are like 2 visa categories, L1 and H1. H1 is lottery based, so company will choose you that okay आपका नाम lottery के लिए भेजेगी, and there are quotas for each company, and that happens for all companies and countries across world. फिर उसमें से अगर आपका नाम आता है, then you go for the next steps. With L1 and H1 साल में एक बार होता है. With L1 it is more for अगर so L1 is for people who are with specialized skill to work for a company. So and with L1 visa you are not allowed to change job if you come to US. You have to stick to the same company क्योंकि L1 का criteria norm ही है कि that is for specialized skill set which is not available in US. So और L1 का criteria ऐसा है कि the company which is sponsoring your visa, you should be a part of that company for at least a year. तो Amazon में 1 साल spend करने के बाद they told if you want to go to US, I told okay why not. Then they went through the L1 loop जो भी होता है, petition file करना and all. It was like 2 months of process. Unlike H1 which is साल में एक बार होता है, फिर lottery में नाम आया नहीं आया. So I mean many people, I have seen many people who stay in a company forever just with the hope कि मेरा US dream complete होगा, कभी मेरा manager मेरे पे मेहरबान हो जाएगा. So guys, it shouldn't be like that. You shouldn't give command of your career
किसी के हाथ में अपने करियर का कमांड मत दो, नहीं तो फिर वो होता है ना, मदारी के हाथ में बंदर नाचता है. इट विल बी द सेम स्टोरी. या इट विल बी मियर लक, हो गया तो हो गया. आप लोग को आई मीन यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन यू नो व्हाट यू शुड और कैसे करना चाहिए, कहाँ गैप्स हैं, क्या प्रिपरेशन करना है, कैसी कंपनीज में जाना चाहिए जहाँ से हो जाएगा, and things like that. I would strongly advise everyone that you know just don't मतलब भगवान भरोसे अपने करियर को मत छोड़ो. It will be a nightmare. What will happen, for example, you know, आप TCS ज्वाइन करते हो, you are stuck with a technology which is obsolete, मतलब जिसका कुछ नहीं होना है, बट उसके ऑन साइट के चांसेस काफी हाई हैं. आप 2 साल 4 साल 5 साल वेट करते हो. So once you spend enough time in a specific thing, right, you are tagged along with that. You cannot come out of it क्योंकि आपने उससे बाहर कुछ देखा ही नहीं है. And just think of a situation, एक बंदा जो TCS में 5 साल time spend किया doing something which is not used outside US, not outside TCS. अभी COVID आ गया, US have banned all visa. आप क्या करोगे? You are working on a low pay, stuck in a place, you cannot change job or something. सेम थिंग अगर आप यू नो 5 साल पहले इफ यू लुक बैक, यार थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, कंपनी चेंज कर लो, अगर मुझे यूएस ही जाना है तो यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, राइट. अगर कोई भी अगर वीजा सिचुएशन में फंसा है, उनसे आप पूछो कि 5 साल पहले इफ यू हैव टू लुक बैक व्हाट यू विल डू डिफरेंटली, दे विल डेफिनेटली से कि मुझे कंपनी पहले चेंज कर लेना चाहिए. एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एंड यू नो एंड आई विल से अ ट्रैप जिसपे लोग फंस जाते हैं. They spend too much time in something, hoping for something good to happen. And I think Amit, you're one of the victim. I think you can add your experience. So I mean, what do you think, Amit? If you have to look back 6 years, you know, 5 साल पीछे कर देते हैं, तो what would, because I understand you were looking for an on-site opportunity too. What would you suggest people not to do? And what mistake you think you have done before? Like as you said, कि similarly I was too hopeful and कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी कि कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाएगा. एंड उस होप में दिन बदलते गए, मतलब दिन के साल हो गए, एंड किस तरह 5 से 6 साल एक ही कंपनी में बीत गए पता ही नहीं चला. एंड यू रियलाइज यू आर स्टिल स्टक in the same place. You're doing the same work. You are, so that is when I realized कि अब बहुत देर हो गया. Now I should think about moving on. यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो कहीं और से हो. तो maybe वही as you said earlier कि analysis, self analysis जरूरी है, चाहे आप पढ़ाई को लेके करें, अपने गोल्स को लेके करें, बाहर सेटल ऑन साइट को लेके करे, तो सेल्फ एनालिसिस भी बहुत जरूरी है. अपने आप को रियलिस्टिकली उस चीजों को अप्रोच करना कि अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And honestly speaking, you know, US is a rosy dream. I mean, my perspective is very different about US. My lifestyle in India was way better than my lifestyle here in US. So I always think कि let me go back. फिर सोचता हूँ कि इतने दूर अगर आ गया तो let me spend some more time. But honestly speaking, I mean, India don't lag behind. इंडिया में आपको सब कुछ ही मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको काम मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको सब कुछ ही मिलेंगे. यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन इंडिया. यू डोंट हैव टू कम टू यूएस, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग टू यूएस. देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. ठीक है, पोल्यूशन थोड़ा कम है, हवा ज्यादा अच्छा है, बट हम लोग तो वैसे ही बड़े हुए हैं. if that's really a problem for you, तो फिर आप सोच सकते हो. If that's not a problem, तो I mean you should reevaluate. अगर आप क्यों यूएस आना चाहते हो, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा यूएस इंडिया में भी कमा सकते हो, आपको ज्यादा सेविंग्स करना है, things like that. मतलब just reevaluate कि आपको यूएस क्यों आना है इतना desperately. What you need in यूएस या एक ऑन-साइट अपॉर्चुनिटी में. And based on that you should decide. If you think कि हाँ this is the country यहाँ पे मुझे रिटायर होके सेटल होना है, तो well and good. अगर आपको नहीं पता है तो just think आपको यूएस क्यों आना है. What is that you are looking for in US which is not available in India. And फिर decide करो कि यूएस क्यों आना है. Okay. So how would you define
your अभी if you compare it with India, तो US का lifestyle अभी कैसा है, and how was it in India? US में pros and cons क्या है, India में pros and cons क्या है? सो इंडिया में मैं एक 2000 स्क्वायर फीट के घर पे रहता था। यूएस में मैं 500 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूँ। यू नो यहाँ पे मैं बर्तन धोता हूँ, लॉन्ड्री खुद करता हूँ, झाड़ू पोछा खुद करता हूँ। इंडिया में आई हैड मेड्स who take care of everything. बेंगलोर में मैं अगर हर दिन सुबह उठ के मेरे बालकनी में एक डस्ट का मोटा लेयर रहता था, यहाँ पे नहीं रहता है। एयर इज मोर क्लीन, लेस पॉपुलेशन, मोर फ्री स्पेस। बैंगलोर वाज मोर कंजेस्टेड, ट्रैफिक ज़्यादा था, पोल्यूशन ज़्यादा था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दोज वर नेवर प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, आई वाज यूज्ड टू इट, वैसे ही मैं बड़ा हुआ था। Coming back to professional point, working with Americans and Indians in terms of smartness, I don't find Indians lagging behind. At many cases, we are far better. At times, they are better. What I've seen, they are more expressive. They are very vocal about their points. बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हम Indians थोड़ा चुप करके काम करके खत्म करके चले जाते हैं। तो वही होता है ना। वो लोग शोर शराबा ज्यादा करते हैं तो थोड़ा ग्लैमरस लगता है, हम थोड़ा कम बोलते हैं तो थोड़ा डल सा लगता है। आई फील दैट्स द डिफरेंस। तो what would you say कि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में बेटर था या यूएस में बेटर है अभी? वर्क लाइफ बैलेंस इज अ कल्चरल थिंग and it's totally driven by the kind of people you are working with. You cannot tag work life balance with a company, especially if you're working for a multinational company. If it is a multinational company, people from different places will work in that company. So मेरे team में we have 2 Americans and 8 non-Americans. So I cannot say that my team's culture is driven by Indians or Chinese or American. It's driven by my peers. So I have seen, so over here in US, high level, what I have seen, people are a bit more focused on their work-life balance. वो चाहते हैं कि घर जाके अपना hobby pursue कर ले, थोड़ा time spend कर ले. If you ask me what is your hobby, मुझे पता ही नहीं मेरा hobby क्या है. I don't know. So what I do, I end up working. मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ. If you ask my a peer who is from America, he will say, okay, मुझे घर जाके जिम जाना रहता है, बोटिंग करना रहता है, स्विमिंग करना रहता है, तो वो करता है. मुझे काम करने में अच्छा लगता है तो मैं काम करता हूँ. Does it mean मेरा work life balance hamper हो रहा है? It's a subjective question, We cannot tag work life balance with so there are teams in Amazon which are very demanding. तो वहाँ पे लोग काम करते ज्यादा. There are teams which are less demanding, which are stable. वहाँ काम कम रहता है. It's the nature of the business and your peers इनके साथ आप काम कर रहे हो. See, at the end of the day, we are working for MNCs, which is business driven. If the demand of the business is कि आपको ज्यादा काम करना होगा, आपको ज्यादा काम करना होगा. If the demand of the business आपको कम काम करना होगा, कम काम करना होगा. It is not driven by a company or a team or any individual. It totally depends on the demand of the business. So in the end, if you would like to suggest or advise the students or professionals who are just going to start their career, so what would that advice be? What would your suggestion be? So what I would strongly recommend is कि guys, find out what you want to do, what you want to achieve. Let it be company or let it be money. You target कि you need X amount in this year. आपका सैलरी इतना होना चाहिए, आप इस कंपनी में होना चाहिए. A target based decision always helps. आप एक target choose करो and run behind it. And trust me guys, there is nothing called luck. And बाहर से कोई आके खाने का थाली आपके हाथ में नहीं रखेगा. You have to go and fight for it. There is no easy way to success. It's effort. It's all effort. It's all strategy. And short term में कुछ नहीं होता है. Things don't change over weeks. It needs months and months of very sincere effort. And you will see the result for sure. Trust me. I have not seen anyone who have not seen
or tasted success after putting in effort. Mm. That's a very good advice to have. So thank you, Shekhar, for your time. And before we end this session, as you said कि कोई hobby है नहीं, then I would love to help you एक hobby develop करो और मैं कोशिश करूँगा कि as you have shared your experience तो मैं भी कुछ तुम्हें सिखाते जाऊँ और ये बेसिक गिटार है कुछ मुझे भी ज्यादा आता नहीं मैं भी एवरेज गिटारिस्ट हूँ Oh no, by the way, अगर तुम मुझे हैप्पी बर्थडे सुनाने वाले हो तो मैं सिंगल स्ट्रिंग में हैप्पी बर्थडे बजा लेता हूँ गिटार में. नहीं तो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ नॉर्मल अगर याद होगा तुम्हें हमारे समय में एक सोनी चैनल पे एक सीरियल आता था उसका नाम था लव स्टोरी एंड उसका जो टाइटल ट्रैक था तो छोटा सा ट्रैक है एंड तुम्हें इजी होगा सीखने के लिए बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल गिटार विद दिस इज कॉल्ड द फ्रेटबोर्ड और इसमें 6 स्ट्रिंग्स होते हैं तो स्ट्रिंग्स को याद करने का तरीका है EADGBE या इसे कहते हैं easier to अगर याद करना है स्ट्रिंग्स के नाम तो कहते हैं ईस्टर बनी गेट्स ड्रंक एट ईस्टर तो ये सबसे इजी वे है इसको याद करने का और ये मैं सिर्फ लीड बजाऊंगा ताकि तुम्हें आसान लगे तो पहला इसमें थर्ड फ्रेट पे थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग है फिर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग एंड देन लास्ट होगा तुम्हारा डी माइनर कॉर्ड ये बाद में तुम देख के सीख सकते हो नहीं भी सीखना है तो मेरे व्यूअर्स सीख सकते हैं अगर वो चाहे तो तेरी यादें वो बातें वो यादें और रातें इन हवाओं की सौगातें मेरे दिल को छू जाए यादें हैं तुझसे प्यारी मैंने इस दिल की सारी बातें इस दिल की सारी बाजी है हाली तो एक हॉबी डेवलप करो गिटार बजाओ बीवी को सुनाओ एंजॉय करो लाइफ एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम और thank you very much for joining my show. Thank you. Thanks, bye bye. Good night. Yeah, it was good talking to you. Bye bye.